পণ্য জটের অজুহাত দেখিয়ে হঠাৎ করেই ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। গত ৮ এপ্রিল নেয়া এমন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল মোদী সরকারের অভ্যন্তরে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার ঝড় উপস্থিতি। ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনে বাংলাদেশ নিজেকে তুলে ধরছিল দক্ষিণ এশিয়ার সব পথ যেন মিলেছে এক পথে। আজ বাংলাদেশের মাটি যেন একখণ্ড ফিলিস্তিন। সবার চোখে মুখে দখলদার ইসরায়েলের বর্বর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে শুরু। লাখো মানুষের জমায়েতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মার্চ ফর গাজা কর্মসূচি करेंगे। इंडिया ने बांग्लादेश की जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल की है, हर कोई हैरान रह गया आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया ने ये स्टेप लिया। यहाँ पे बांग्लादेश में जैसे ही इंडिया को पता चला कि बांग्लादेश में एक इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है, उस इन्वेस्टमेंट समिट के चलते इंडिया ने बांग्लादेश की ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है इसको कैंसिल कर दिया ताकि बांग्लादेश परेशान हो जाए और बांग्लादेश को टेंशन का शिकार किया जा सके। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश किसी टेंशन में नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट समिट में बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स आई और बकायदा रिकॉर्ड बन रहा है कि कितनी तेजी के साथ बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इससे पीछे मैंने आप लोग से शेयर किया था कि चाइना से जो है डेलीगेशन बांग्लादेश आ रहा है और वो सीएम है ई कॉमर्स के, उन्होंने जो है बांग्लादेश आना था और साथ उन्होंने 200 कंपनीज चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में लेके आना थी। तो उनका भी जो विजिट है वो बांग्लादेश में रहा। इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने हसद में जलन में बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट जो है फैसिलिटी उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब बांग्लादेश चुप नहीं रहेगा, बांग्लादेश बड़े एक्शन लेगा। और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश में जिस तरह बहुत मैसिव लेवल पे, बहुत ह्यूज लेवल पे गजा के लिए जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गजा के लिए आवाज उठा रहा है। बांग्लादेशियों ने अपनी आवाज, अपनी सपोर्ट जो है पूरी दुनिया को शो करा दी है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन को। आप लोग जो है ये रिपोर्ट देखें, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, देन आप लोग साथ मजीद चर्चा करते हैं। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। পণ্য জটের অজুহাত দেখিয়ে হঠাৎ করেই ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। গত ৮ এপ্রিল নেয়া এমন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল মোদী সরকারের অভ্যন্তরে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার ঝড় উপস্থিতি। ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনে বাংলাদেশ নিজেকে তুলে ধরছিল দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক হাব হিসাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতের কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ডের এমন ঘোষণার পরপরই ছড়াতে শুরু করে নানামুখী গুঞ্জন। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ঢাকায় বহুজাতিক সম্মেলনের মাঝেই কেন এমন সিদ্ধান্ত দিতে হলো নয়াদিল্লিকে? এর মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদী কি দিতে চাইছেন পরোক্ষ কোনো সতর্কবার্তা? গত ৭ থেকে ১০ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ২০০-র বেশি বিনিয়োগকারীর সামনে আঞ্চলিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তুলে ধরাই ছিল সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ যেন দিল্লির ছায়া ছেড়ে বেশি দূরে না সরে যায় এবং নিজের পরিচয় নিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে না পারে, ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল করে কৌশলগতভাবে সেটাই যেন মনে করিয়ে দিতে চাইল ভারত। এমন ধারণা অনেক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের। তবে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করা হলেও ভারতের উপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই উল্টো অবস্থান নিয়েছে সবসময় বন্ধু দাবি করে আসা প্রতিবেশী দেশ ভারত। দিল্লির এবারের সিদ্ধান্তে ভারতের তাৎক্ষণিক সীমিত লাভ হলেও দীর্ঘমেয়াদে তার হারাবে একটি লাভজনক বাণিজ্যিক প্রবাহ। দিল্লির বিমানবন্দর দিয়ে পশ্চিমা বাজারে পণ্য পাঠানোর ফলে ট্রান্সশিপমেন্ট ফি, মজুরি এবং পণ্য পরিবহনের বিপরীতে ভারতীয় বন্দরগুলো আয় করত মোটা অঙ্কের রাজস্ব। এখন বন্ধ হয়ে যাবে সেই আয়ের উৎস। ট্রান্সশিপমেন্ট রুট ভারতের নিজের জন্য লাভজনক অপশন হলেও কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই কি এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি? ভারতের বিকল্প হিসাবে চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করছে বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের সাথেও জোরে সোরে উন্মুক্ত হয়েছে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসার নানামুখী সম্ভাবনা। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে আকাশপথে রপ্তানি সক্ষমতা, সম্প্রসারণ হচ্ছে নিজস্ব সমুদ্রবন্দর। পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দর দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে আমদানি রপ্তানির নতুন নতুন রুট। দিল্লির সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়ার বদলে নিজের শক্তি দিয়ে বিকল্প পথ তৈরির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের প্রতি মুখাপেক্ষিতা কমিয়ে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার এটাই সঠিক। आप लोगों ने देखी है यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है वो ये कह के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान इंडिया ने पहुंचा दिया है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट फी के हवाले से जो इनकम इंडिया बना रहा था, जो बड़ी मकदार में इनकम जनरेट कर रहा था, इसका भी काफी बड़ा नुकसान इंडिया को हुआ है। और इंडिया को लग रहा है कि बांग्लादेश को ये जो हमने झटका दिया, बांग्लादेश इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, बांग्लादेश इसको हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की जानिब से कहा गया है कि हम इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑलरेडी जो बाय एयर सर्विसेज हैं उनको स्टार्ट करने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश से जो सामान बाहर जाना होगा वो बाय एयर जाया करेगा, क्योंकि जो सामान बांग्लादेश पहले इंडिया भेजता था और फिर इंडिया से वो अदर कंट्रीज में जाता था, अब बांग्लादेश उस सामान को डायरेक्टली जो है अदर कंट्रीज को भेजेगा। तो यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जो है गनवा दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश इंडिया को पे कर रहा था, इंडिया कुछ भी मुफ्त में नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आई थिंक बांग्लादेश को बहुत बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश के जो कॉस्ट है, जो शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश उसको अपनी ही कंट्री से शिप करेगा, बाय एयर शिप करेगा। वेल यहाँ पे और भी बहुत अहम किस्म के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट जो है उसको रोका गया है। अब बांग्लादेश भी इस चीज पे गौर कर रहा है, बांग्लादेश भी इस चीज को देख रहा है कि हम जो है, अगर इंडिया ने हमारे साथ ये किया है तो हम जो है हम भी ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जिससे इंडिया को बड़ा धचका मिलेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो रूट्स जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के ट्रक्स जो हैं वो बांग्लादेश में लेके आते हैं जो सामान, और बांग्लादेश के रास्ते से होकर गुजरते हैं, उन रूट्स को बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो स्पेशली इंडिया के लिए बनाए गए हैं ताकि ट्रेड को जो है आसान बनाया जा सके। लेकिन अब उन रास्तों को बांग्लादेश की जानिब से बंद किया जाएगा और इंडिया को बताया जाएगा कि बांग्लादेश क्या कर सकता है। और स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह बांग्लादेश खड़ा हो गया है फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में, गजा के सपोर्ट में। बांग्लादेशियों ने बता दिया है कि उनके दिल फ़लस्तीनियों के साथ, गजा के साथ धड़कते हैं और वो हमेशा उनके साथ स्टैंड करते हैं। वो अकेले नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेशी उनके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश ने दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पूरे बांग्लादेश ने बाहर निकल के जो है फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा के एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसको लेके इंटरनेशनल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है और हर कोई ये देख के हैरान है। ब्लड सल्यूट है बांग्लादेशियों को, जिंदाबाद बांग्लादेश, वेल डन बांग्लादेशीज़। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है सच में, आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। आई विल सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।